Hello dear students. So today we will be looking at array topic in C programming. हम लोग C programming में array topic सीख लें. I am Dr. Sangram Patil. This is my new video to explain you regarding the array. Now basic use of the array and how we declare the array. Array use करना क्यों है और declaration क्यों करना है. If we want to use 2 or 3 values of same data type, like जैसे हमें 3 numbers read करने हैं n1, n2, n3, we can declare 3 variables, that is n1, n2 and n3. These 3 are same data type, इनका data type same है, that is integer. If we want to handle 2 or 3 values of same data type, in that case we can go with array. जैसे हमें एक ही डेटा टाइप की 2 या 3 वैल्यूज हैंडल करनी तो हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं. मगर हमें अगर 3 से ज्यादा चाहिए, इफ वी वांट टू वर्क विथ मोर देन 3 वैल्यूज ऑफ अ सेम डेटा टाइप, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स वी कैन गो विथ टॉपिक कॉल्ड एज अ एरे. हम लोग एरे यूज कर सकते हैं. 2 या 3 वैल्यूज अगर सेम डेटा टाइप के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं. लेकिन अगर 3 से ज्यादा है तो जनरली वेरिएबल डिक्लेयर करने से अच्छा है एरे डिक्लेयर कर, बिकॉज इट वर्क्स फास्टर, इट प्रोसेस फास्टर. जैसे अगर डिक्लेयर करना है, वी वांट टू हैंडल 5 वैल्यूज ऑफ टाइप इंटीजर, so we declare integer because we want to handle 5 types. The variable name is suppose a and we want to maintain 5 values, so we can declare array like this. So this indicates a is your variable which will store maximum 5 values. Look here, this is the maximum, not fixed, maximum 5 values, and all values will be of type integer. Similarly, we can declare float, suppose m of 10. So this indicates m is our array variable which will store maximum 10 values of type float. If it is like this, integer n 15, this is a square bracket, this is a square bracket. Square bracket is used to declare the array. So here n is our variable which will store maximum 15 values of type integer. Now how it looks like? So this is the element a0. Okay. Whatever 5 values, when we declare an array, if we declare an array of suppose integer n5 or integer a5, how those values are stored? First value will be stored as a0. Next value it will store as a1. Next value as a2, then a3 and then a4. So if we declare a as our array variable which will store 5 values of type integer, then this is our whole array. This is our whole array A. First value it's stored as a0, then a1, a2, a3 and a4. So if you check here a0, now a is your array variable. We call this as a array variable. Okay, and the number which we have written within bracket is called as a index or subscript. Commonly it is called as a index. Okay. And the value which is present at this location, the value which we are referring, this is called as a element or the number present within an array. So a0, a1, a2, a3, a5. If we have declared array like integer a10, so this indicates a is our array which will store maximum 10 values of type integer. First value it saves at a0. Second value we can use as a a1, a2, like this up to a9. Always it starts initial value with a0.
जैसे पहले वैल्यू अगर हमें रेफर करनी है, एरे में हमारे 5 वैल्यूज है, इन द एरे वी हैव नाउ 5 वैल्यूज। अगर फर्स्ट वैल्यू हमें चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए, this value we want to read, or if we want to print this value, then this value we can get with the help of A0. This value we can get as a A1, then this is A2, A3 and A4. Array always starts with index position 0. So this is how we can store values in our array. The first value we can use as a A0, second value as A2, third value as A3, fourth value as A4 and next value as A5. Now, if we want to read values, generally if we want to read value for n, then we use scanf %d ampersand. So this indicates read one integer number for n. So when this statement is executed, your compiler will give you blinking cursor on a screen. You input a value, whatever value you input, that value is given to n. So this is n is suppose 26. जब भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी scanf, आपका कंपाइलर ब्लिंकिंग कर्सर देगा इन एग्जीक्यूशन मोड। आपको एक वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, इंटीजर वैल्यू, बिकॉज यहां हम लोगों ने %d दिया है, इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, और जो भी आप इंटीजर वैल्यू इनपुट करोगे वो दी जाएगी n को। अब मुझे क्या करना है, जो भी मैंने एरे डिक्लेयर किया है, सपोज मैंने एरे ऐसे डिक्लेयर किया, एरे A5 मींस A0, A1, A2, A3, A4। अब मुझे इन लोगों के लिए वैल्यूज रीड करनी है। सपोज A0 की वैल्यूज रीड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, scanf %d ampersand A0। %d क्यों दिया है, क्योंकि हम लोगों ने एरे इंटीजर डिक्लेयर किया है। सो दिस इंडिकेट्स रीड वन इंटीजर नंबर फॉर A0। जैसे मैंने बताया ना अभी पहले, अगर नंबर की वैल्यू रीड करनी है, n की वैल्यू रीड करनी है, तो हम लोग देते हैं ampersand। एरे के लिए वैल्यू रीड करनी है तो हम लोग देते हैं A0। हमें 0 के लिए वैल्यू रीड करनी है, यहां के लिए वैल्यू रीड करनी है, 1 के लिए वैल्यू रीड करनी है, we will give it like this, read value for A1, then A2, same for A3 and A4, read value for A3 and read value for A4। वैल्यूज अगर प्रिंट करनी है तो ये स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट हो, ऐसे एरे डिक्लेयर किया है तो यहां 5 ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। यह स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तब कंपाइलर ब्लिंकिंग कर्सर देगा बिकॉज ऑफ स्कैनफ स्टेटमेंट। अब आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे, सपोज 26 वैल्यू इनपुट की, दिस 26 वैल्यू विल बी गिवन टू A0, सो हियर इट सेव्स वैल्यू 26। उसके बाद ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर से कंपाइलर ब्लिंकिंग कर्सर देगा, आपको फिर एक वैल्यू इनपुट देनी पड़ेगी और एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी, यहां भी एंटर की, तो ये वैल्यू दी जाएगी A1 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां A14। ये स्टेटमेंट जब हो जाएगी तो आपको एक वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी 33, सो दैट वैल्यू विल बी गिवन टू A2। ये स्टेटमेंट जब हो जाएगी फिर से वो ब्लिंकिंग कर्सर देगा, आपको वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, वो वैल्यू देगा वो A3 को, और ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आपको वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, सपोज 15 एंड एंटर की, ये आपको यहां दी जाएगी। सो दिस इज नथिंग बट A0, this is nothing but your A1, this is your A2, this is your value A3, and this value is A4, and this is your array A। so this is how it saves the value, okay। अब हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है, जैसे रीड की है वैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट टाइप %d A0 में जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट हो जाएगी। यहां कौन सा है 26, so it will print 26, then it will print value of A1। what is A1? it is 14, so this will print 14। similarly A2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, A3 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और A4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमें कोई वैल्यू n की वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट टैब %d ampersand,
So this printf means you want to display something. What you want to display? One integer number. कौन सा integer number? जो n में है. अब array में हम लोगों ने जो वैल्यूज इनपुट की है थोड़ी देर पहले, अगर वो हमें प्रिंट करनी है तो वी हैव टू यूज printf स्टेटमेंट. परसेंटेज डी क्यों यूज किया? इस जगह परसेंटेज डी क्यों है? बिकॉज दिस इज अ इंटीजर. एंड देन a0 मतलब a0 की वैल्यू प्रिंट करो, a1 की प्रिंट करो, a2 की प्रिंट करो, a3 की प्रिंट करो और a4 की वैल्यू प्रिंट करो. अगर हम लोगों ने फिर से एक बार देखा scanf स्टेटमेंट एंड printf स्टेटमेंट कंबाइनली, सो इट विल लुक लाइक दिस. scanf, ये सारे scanf है टू रीड द वैल्यूज फॉर द array. arrays की हम लोग कैसे वैल्यूज रीड कर सकते हैं और ये हम लोग array की वैल्यू डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं. array डिक्लेयर करना है तो हम लोग array डिक्लेयर करेंगे इंटीजर a5. अब array की यूजिंग scanf हम लोग वैल्यूज रीड करेंगे और यूजिंग printf हम लोग वैल्यूज प्रिंट करेंगे. और जब भी हमें array की कोई भी वैल्यू चाहिए तो ब्रैकेट में इंडेक्स यूज करना बहुत जरूरी है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है. दिस इज अ रूल, दिस इज अ सिंटैक्स, दिस इज रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर वैल्यूज रीड करनी है या फिर वैल्यूज प्रिंट करनी है, कोई भी वैल्यू अगर आपको रीड करनी है या प्रिंट करनी है या प्रोसेस करनी है, उनकी एडिशन करना है, उनका सब्ट्रैक्शन करना है, जो भी करना है, हमें इंडेक्स यूज करना बहुत जरूरी है. और वो इंडेक्स जो है वो ब्रैकेट में होना बहुत जरूरी है. ये हम लोग वैल्यूज रीड करेंगे 5 वैल्यूज और ये वैल्यूज करेंगे प्रिंट करेंगे 5. अब वैसे वो लेंदी है, ये बहुत लेंदी है. अगर 10 चाहिए तो हम लोग ऐसे 10 स्टेटमेंट थोड़ी लिख सकते हैं. स्कैनफ 10 और प्रिंटफ 10 नहीं लिख सकते. तो अगर हम लोगों ने ये ब्रैकेट का जो नंबर है स्कैनफ स्टेटमेंट चेक किया, ये ब्रैकेट का नंबर जो है, ये अगर नंबर हम लोगों ने रिमूव कर दिया तो ये स्टेटमेंट ऐसे दिखेगी. ये है वो ऐसे दिखेगा कि इफ वी रिमूव दिस इंडेक्स, क्यों करना है हम लोग बाद में देखेंगे. अगर हम लोग ने ये इंडेक्स रिमूव किया तो स्कैनफ स्टेटमेंट ये ऐसे दिखेगी. ठीक है. सेम प्रिंटफ स्टेटमेंट, अगर हम लोगों ने ये ब्रैकेट का इंडेक्स रिमूव कर दिया तो ये स्टेटमेंट ऐसे दिखेगी विदाउट इंडेक्स. विदाउट इंडेक्स ये स्कैनफ ऐसे दिखेगा, प्रिंटफ ऐसे दिखेगा. अब स्कैनफ चेक कर लिया तो ये एक स्टेटमेंट जो है, दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट वी आर रिपीटिंग 5 टाइम्स. द सिंगल स्टेटमेंट इज रिपीटेड 5 टाइम्स. सिर्फ ब्रैकेट नहीं है, बीच में नंबर नहीं है. ठीक है. अब हमारा जो पहले स्टेटमेंट था उसमें क्या था? यहां ब्रैकेट में 0 था, यहां 1 था, यहां 2 था, यहां 3 था, 4 था. ठीक है. अभी वो हम लोग रिमूव कर दिया और ये स्कैनफ स्टेटमेंट डाले, बिकॉज दिस स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट वी वांट टू रिपीट 5 टाइम्स. अगर आपको फॉर लूप पता होगा, आपने पहले कभी किया होगा तो करना बहुत जरूरी है. इसके लिए एरे के लिए फॉर लूप आना बहुत जरूरी है. अगर किया नहीं है तो आप कर लेना, बुक से पढ़ लेना या फिर वीडियोस देख लेना मेरे लूपिंग के. सो इफ सर्टेन पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, इफ इट इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, if this is your program, and if certain part of your program, if it is repeated again and again continuously, then instead of repeating this program again and again continuously, we go with looping. प्रोग्राम लिखते समय पता है कि कितनी बार करना है तो हम लोग फॉर लूप यूज कर सकते हैं. और प्रोग्राम लिखते समय अगर पता नहीं है कितनी बार करना है तो हम लोग while और do while यूज करते हैं. ठीक है. 0 और मल्टीपल टाइम्स करना है तो हम लोग while लूप यूज करते हैं. 1 और मल्टीपल टाइम्स करना है तो हम लोग do while यूज करते हैं. अब ये हमें पता है कि यही स्टेटमेंट हमें 5 बार रिपीट करनी है. एक ही स्टेटमेंट हमें 5 बार रिपीट करनी है. प्रोग्राम लिखते समय पता है हमें, तो हम लोग यूज करेंगे सेम फॉर printf, सेम स्टेटमेंट इज रिपीटिंग 5 टाइम्स, तो हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप, बिकॉज वी वांट टू रिपीट दिस सिंगल स्टेटमेंट 5 टाइम्स. Similarly, we want to repeat printf statement 5 times. ये भी स्टेटमेंट हमें 5 बार रिपीट करना है. scanf में भी 5 बार रिपीट करना है. तो 5 बार रिपीट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे for r equal to 0, r is less than 5, r plus plus. लेकिन अगर हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट चेक किया तो यहां 0 है, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है और यहां 4 है. ऐसे हमें 5 बार करना है. ऐसे नहीं करना है, इसके जैसा नहीं करना है.
ऐसे करना है, जो ब्रैकेट में 0 1 2 3 4। लेकिन अगर फॉर लूप चेक किया तो इनिशियली फॉर लूप की वैल्यू रहेगी 0, लेस देन 5, यस स्कैन एफ एग्जीक्यूट का, अभी नहीं होगा, एरर होगा, लेकिन फिर भी देख लेना। देन आर प्लस प्लस, आर की वैल्यू हो जाएगी 1, देन आर प्लस प्लस वैल्यू हो जाएगी 2, देन हो जाएगी 3, देन हो जाएगी 4, और जब 5 होगी तो लूप से बाहर गिरेगी, बाहर आ जाएगी। और यही वैल्यू जो है 0 1 2 3 4 वो हमें यहां चाहिए इंडेक्स के बदले। तो इसीलिए ये फॉर लूप जो है हम लोग ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। Now this indicates actually how to read array values. Now when we execute this program, initially value of r will be 0, less than 5, yes. Your compiler will execute scanf statement. Scanf statement will give you blinking cursor. If you input value 26 and if you press enter key, this value 26 will be given to a of r. Okay, AR, or you can say R of A. Now here R works as an index. So whenever this something is used as an index, index means जो square bracket में होगा वो index consider करेगा. So instead of considering that variable, your compiler will consider value of that variable. जब भी कोई as a index करके consider किया जाता है variable, तो execution के समय compiler जो है वो जो r वेरिएबल है उसकी वैल्यू कंसिडर करेगा, और यहां उसकी वैल्यू 0 है, तो आप जो भी वैल्यूज इनपुट करें, 26 इनपुट किया है, दैट वैल्यू इज गिवन टू a0. सो नाउ a0 विल बिकम 26. देन r प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ r बिकम्स 1, लेस देन 5, यस स्कैनफ, अगर वो अगेन ब्लिंकिंग कर्सर देगा, अगेन आप वैल्यूज इनपुट करोगे, सपोज 14 इनपुट किया, वो देगा ar को, लेकिन r वर्क्स एज ए इंडेक्स, उसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो a1 को वैल्यू वो देगा 14. r प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ r बिकम्स 2, लेस देन 5, यस स्कैनफ परसेंटेज d, फिर से वो ब्लिंकिंग कर्सर देगा, फिर से आपको एक वैल्यू इनपुट करेगी 35 करनी पड़ेगी, और वो 35 देगा ar को, लेकिन r जो कि वो इंडेक्स करके काम करता है उसकी वैल्यू 2 है, तो a2 को वैल्यू देगा वो 35. सिमिलरली a3 को वैल्यू जो भी इनपुट करोगे आप वो देगा, a4 का वैल्यू जो भी इनपुट का वो देगा, और जब r की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी और ये लूप के बाहर आएगा. और ये हमारे स्कैनफ के 5 स्टेटमेंट्स 1 बाय 1 एग्जीक्यूट किए जाएंगे. सिमिलरली प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट करने के, अगर मैं स्कैनफ के बदले जब ये 5 स्टेटमेंट लेगा तो इसलिए हम लोगों ने प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल दिया, इनपुट एनी 5 नंबर, नथिंग मोर. सिमिलरली प्रिंटफ स्टेटमेंट 5 बार रिपीट हो रहा है, हमें चाहिए ब्रैकेट में 0 1 2 3 4, हमें चाहिए ब्रैकेट में यहां चाहिए 0, यहां चाहिए 1, यहां चाहिए 2, यहां चाहिए 3 और यहां चाहिए 4. तो ये जो r की वैल्यूज है ये भी वैल्यूज 0 to 4 जाती है, तो हम लोग इनपुट करेंगे r. इनिशियली r इज 0, लेस देन 5, यस प्रिंट, हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है, कौन सी क्या प्रिंट करना है, एक इंटीजर नंबर प्रिंट करना है, कौन सा इंटीजर नंबर प्रिंट करना है, ये AR प्रिंट करना है. R वर्क्स एज द इंडेक्स, जो कि R की वैल्यू 0 है, सो दिस इंडिकेट्स प्रिंट द वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट A0. A0 में भी जो भी वैल्यूज है वो प्रिंट की जाएगी. R प्लस प्लस, R बिकम्स 1, लेस देन 5, यस. आगे हमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, एक इंटीजर नंबर, कहां का प्रिंट करना है, A ऑफ R का प्रिंट करना है, लेकिन R की वैल्यू क्या है 1 है, तो ये 1 की वैल्यू प्रिंट करेगा. वैसे ये 2 की वैल्यू प्रिंट करेगा, 3 की वैल्यू प्रिंट करेगा, 4 की वैल्यू प्रिंट करेगा, और जैसे ही R की वैल्यू 5 हो जाएगी ये लूप के बाहर हो जाएगा. तो दिस इज हमारा जो पहले था A0 प्रिंट, A0 A1 A2 A3 A4, ये हम लोग फॉर लूप के जरिए ये वैल्यूज प्रिंट कर सकती है. अगर कितनी भी वैल्यूज है, अगर हम लोगों ने एरे 10 का डिक्लेयर किया है तो यहां सिर्फ चेंज करो 10, वो अपने आप काम कर लेगा. ऐसे नहीं कि 10 बार प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा या फिर 10 बार स्कैनफ यूज करना पड़ेगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा. दैट्स व्हाई array is easy. So inputted numbers are, it will print the number. Now whole program will now look like this. We have declared array of 5 numbers. We are using variable r for the index. This part will read 5 numbers and this part will print the 5 numbers. अब जो भी वैल्यूज है वो एक ही लाइन में प्रिंट करेगा,
क्योंकि यहाँ स्लैश टी है। वो देगा इनपुटेड वैल्यूज, वैल्यूज यहाँ होना चाहिए वैल्यूज, सॉरी, इनपुटेड वैल्यूज आर, और उसके आगे वैल्यूज प्रिंट करेगा जो भी आप वैल्यूज इनपुट करोगे। पहले एरे डिक्लेयर किया जाएगा 5 वैल्यूज के लिए, A0, A1, A2, A3 एंड A4। ये A0 हो जाएगा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये है A4। तो इनिशियली वैल्यू ऑफ R इज 0, तो जो भी वैल्यू आप इनपुट करोगे वो देगा A0 को, तो यहां वैल्यू आ जाएगी। देन R बिकम्स 1 बिकॉज ऑफ R प्लस प्लस, लेस देन 5 यस, फिर से स्कैनफ स्टेटमेंट देगा, जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो देगा A1 को, जैसे यहां देगा। देन R प्लस प्लस, जो भी वैल्यू इनपुट करोगे यहां देगा, उसके बाद यहां देगा और उसके बाद यहां देगा। R की वैल्यू 5 हो जाएगी, वो लूप से बाहर आ जाएगा। फिर वो देगा इनपुटेड वैल्यूज R इक्वल टू 0। सेम लाइन पे नेक्स्ट स्टेप पे एक नंबर प्रिंट करना है। कौन सा नंबर प्रिंट करना है? जो AR में है। लेकिन अगर अभी R की वैल्यू 0 है, so it will print the number which is present at A0. Then R plus plus, R becomes 1, less than 5 years, it will print the number which is present at A1. Then R becomes 2, A2, R becomes 3, A3, R becomes 4, it will print A4 and then it will come out of the loop. Okay, very simple program. Now, अभी जो नंबर प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ जो नंबर प्रिंट कर रहे हैं A0, A1, A2, A3, A4 जो भी है, अभी वो प्रिंट करना है नंबर इवन है या ऑड है। हम लोग कोई भी नंबर अगर इवन है या ऑड है कैसे करते हैं? इफ नंबर जो भी है mod 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स परसेंटेज D इज इवन, जो भी n है वो इवन है। अगर उसको ये अगर 2 से पूरा डिविजिबल है, उसकी रिमाइंडर अगर 0 है तो इवन है, एल्स दिस नंबर इज ऑड। अब हमें चेक करना है जो भी हम लोगों ने एरे डिक्लेयर किया है और जो भी वैल्यूज हम लोगों ने रीड की है, ये पार्ट हम लोग रीड किया है, जो भी हम लोग A0, A1, A2, A3 एंड A4, दिस इज 0, 1, 2, 3 और 4, जो भी हम लोगों ने वैल्यूज इनपुट की है, जो भी हम लोगों ने वैल्यूज इनपुट की है वो वैल्यू हमें प्रिंट करनी इवन है कि ऑड है। जैसे 17 इज इवन, 13 इज 33, 17 इज ऑड, 33 इज ऑड, वैसा हमें प्रिंट करनी। यहाँ स्टूडेंट्स ये लेना /n, अलग लाइन पे हम लोग प्रिंट करेंगे /n, एक साथ नहीं प्रिंट करेंगे, अलग अलग प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग n यहाँ यूज कर रहे हैं, हमें n नहीं कंपेयर करना है, हमें A0, A1, A2, A3 की वैल्यू प्रिंट करनी है। और हम लोग A0, A1, A2 कैसे रेफर करते हैं? बाय AR। सो आवर इफ विल बिकम इफ A ऑफ R mod 2 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें अभी n नहीं कंपेयर करना है, हमें क्या करना है, एरे में जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमें चेक करनी है। अब एरे की वैल्यूज हम लोग कैसे रेफर करेंगे? दैट इज विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स AR। तो हम लोग ने यहां डाल दिया इफ A of R mod 2 इक्वल टू 0, दैट नंबर इज इवन, एल्स दैट नंबर इज ऑड। फॉर लूप में एक ही स्टेटमेंट है इफ एल्स, तो कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं किया है। So this program will read 5 numbers for the array and this will print the numbers with whether it is even or odd। जैसे हम लोग यहाँ 5 नंबर रीड करें एरे के लिए और हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, हर नंबर प्रिंट कर रहे हैं वो इवन है कि ऑड है। अगर हमें 10 नंबर्स क्लियर करना है तो यहां करो A of 10, यहां करो 10, यहां करो 10 और यहां करो 10। अपने आप 10 क्लियर हो रहा हो जाएगा, बाकी कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही तो खासियत एरे की। नाउ यहां हम लोगों ने नंबर्स रीड किए हैं और नंबर्स प्रिंट किए हैं। हमें करना है नंबर्स अभी रीड करने हैं और उनको एडिशन करनी है जो भी है। जैसे सपोज 5 नंबर डिक्लेयर किए, तो ये 5 नंबर है A0, 1, 2, 3 और 4, जो भी नंबर है 7, 6, 3, 4, 5, हमें सम करनी है।
तो हम लोग सम क्या करेंगे, पहले सम को हम लोग 0 करेंगे, फिर सम में हम लोग ऐड करेंगे A0, देन जो भी वैल्यू सम की आएगी उसमें फिर हम लोग ऐड करेंगे सम इक्वल टू A1, देन A2, ऐसे करते जाएंगे। तो सपोज ये 5 नंबर इनपुट किए हैं, अगर एडिशन करनी है तो हम लोग ये पार्ट यूज कर सकते हैं, दिस इज फॉर एडिशन ऑल नंबर। क्या होगा, पहले R इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0, R इज लेस देन 5, यस, सम इक्वल टू सम प्लस AR। सम की वैल्यू क्या है 0, A ऑफ R की वैल्यू क्या है, R इज 0 है, तो AR क्या है 7 है, तो 7 प्लस 0, ये न्यू वैल्यू हो जाएगी सम की 7। दिस इज नथिंग बट सम इज इक्वल टू सम प्लस A ऑफ, दिस इज बाइनरी ऑपरेटर हमने किया है, ये बाइनरी ऑपरेटर है। तो इनिशियली R की वैल्यू 0 है, सम की वैल्यू 0 है, सम इक्वल टू सम प्लस A ऑफ R। R अभी वो 0 कंसिडर करेगा, R इज कंसिडर्ड एज अ 0, सो A0 की वैल्यू जो भी है 7 वो ऐड की जाएगी सम में, और वो फिर से आएगा सम में। R प्लस प्लस वैल्यू ऑफ R बिकम्स 1, लेस देन 5, यस, सम इक्वल टू सम प्लस A ऑफ R। A ऑफ R क्या है अभी A1, A1 क्या है 6 है, सम क्या है 7 है, 7 प्लस 6 13, दैट इज द न्यू वैल्यू ऑफ सम। R प्लस प्लस R बिकम्स 2, लेस देन 5, यस, सम इक्वल टू सम प्लस A ऑफ R। R 2 है, तो 2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो सम इक्वल टू 13 प्लस 3 16, दैट इज द न्यू वैल्यू ऑफ R। देन सम 3, फिर से 3 ऐड हो जाएगा, देन इट बिकम्स 4, A4 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, लूप के बाहर आएगा। एडिशन ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल टू 25। तो एरे हमें रीड करना है, एरे प्रिंट करना है, एरे प्रोसेस करना है, इंडेक्स बहुत जरूरी है। जैसे एडिशन, अगर हमें एवरेज चाहिए, इवन नंबर की एडिशन चाहिए, तो ये जो हम लोगों ने किया है सम इक्वल टू दिस, ये जो किया है ये हमें कब करना है, जब नंबर इवन हो तब। और इवन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये इफ A ऑफ R mod 2 इक्वल टू 0, देन सम प्लस इज इक्वल टू A ऑफ R। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम। रीड 5 10 जो भी नंबर्स है, रीड 5 नंबर्स एंड फाइंड आउट एडिशन ऑफ इवन नंबर्स। इस प्रोग्राम में हम लोग सब नंबर्स ऐड कर रहे थे, जितने भी नंबर्स हम लोगों ने इनपुट किए हैं वो हम लोग सब नंबर्स ऐड कर रहे थे। अभी हमें सब नंबर्स ऐड नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ ऐड करने हैं इवन नंबर्स। सो ऐड करने से पहले चेक करना है वो नंबर इवन है कि नहीं है। अगर नंबर इवन है तो ही ऐड किया जाएगा, अगर नंबर ऑड है तो ऐड नहीं किया जाएगा। एवरेज निकालना है, ये अभी सबका सम है, एवरेज निकालना है। तो जितने भी नंबर इवन है, कितने नंबर्स इवन है वो देखना बहुत जरूरी है। सपोज हम लोगों ने 5 नंबर्स इनपुट किए, 17 20 8 15 और 33, ये हम लोगों ने 5 नंबर इनपुट किए। तो हमें क्या करना है, एवरेज ऑफ इनपुटेड इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स कितने हैं, 2 है यहाँ, 20 प्लस 8, तो सम बिकम्स 28। और कितने नंबर है, 2 ही नंबर है, तो ये आएगा 28 डिवाइड बाय 2, सो एवरेज आना चाहिए 14। तो जो भी हम लोग 5 नंबर रीड कर रहे हैं उसमें से सिर्फ हमें इवन नंबर का एवरेज चाहिए। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इवन नंबर की एडिशन कर रहा है। अब इवन नंबर का एवरेज चाहिए, तो एडिशन करते समय हमें एक काउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, कितने नंबर्स इवन है, क्योंकि हम लोग डिवाइड बाय 5 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 यहां क्या है, 2 ही नंबर इवन है, 5 नंबर इवन नहीं है। तो जितने भी नंबर्स हम लोग रीड करके ले रहे हैं, हमें देखना पड़ेगा कि उसमें से कितने इवन नंबर्स है। तो इसीलिए हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेगा काउंट, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी इनिशियली 0, और फिर अगर नंबर इवन है तो ऐड भी करना और काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर देना। अब जब भी ये लूप के बाहर आएगा तब हो जाएगा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय काउंट। अगर आपको और के लिए करना है तो ऐसे आप लोग और के लिए कर सकते हो। उसका एवरेज भी अगर निकालना तो एवरेज भी आप निकाल सकते हैं। ये एवरेज का प्रोग्राम है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एवरेज का प्रोग्राम। ये वो और का है, वैसे भी आप लोग और को कर सकते हो, और का
बुक में देखो, मेरे बुक में ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हुए हैं मैंने। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियोस है मैं डालूंगा आपको जल्दी से पता चलेगा। और इफ यू वांट यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।